A very warm welcome to all of my students to my channel Guidance by Apurva. This is a very much awaited video. In this video, I'll give you micro topics for Indian polity. Though this video will have much of its explanation in Hindi, but I do request people who aren't comfortable with Hindi do look at this video and just note down the important uh, subtopics. At least it will be helpful to you. Wherever possible, I'll try to be bilingual, but due to the flow and due to the maximum viewers on my channel are much likely desiring the explanation in Hindi. So I'll be more tilted towards Hindi, sir. So let's begin. And this video will be very, very relevant to people who are preparing for UGC NET Political Science or whosoever are preparing for Jawaharlal Nehru entrance examination for MA Politics with specialization in international relation and international relation and area studies. So let's begin. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगी जो बच्चे जिन्होंने लक्ष्मीकांत की है पहले की है एटलीस्ट मिनिमम एक बार वो पूरी कर चुके हैं वो आप इस वीडियो को ऐसे लीजिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको और जो दूसरे बच्चे जिन्होंने लक्ष्मीकांत कभी की ही नहीं है और एग्जाम विद इन अ मंथ और 40-50 डेज में है तो प्लीज आप अभी लक्ष्मीकांत साहब की किताब मत उठाइएगा 20 दिन से ज्यादा लग जाते हैं किसी भी बच्चे को जो पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़े ठीक है तो जिन बच्चों ने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं है वो प्लीज या तो जैसे गाइड्स होती है ना जो यूपीएससी के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं काफी सारे उनकी गाइड्स में इनके शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं लूसेंट टाइप की बुक्स में भी मिल जाते हैं नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं उनमें से ये टॉपिक सर्च कर करके पढ़ लीजिएगा ठीक है for those students who have never ever read Lakshmikant and your exam is just around the corner within a month so I request you this is not the time for you to pick up Lakshmikant and read it page by page rather you can search for such materials from the websites which provide free material for UPSC kind of exams UPSC SSC or other exams or you can even take a help of any guide or any material which is freely available in your freely not a minimal cost is available in your market so let's begin फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमने कहाँ से क्या चीज ली है फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड व्हाट लाइक डीपीएसपी from Ireland and emergency provision from Germany these kind of things like fundamental rights and all from where we have borrowed what in our Indian constitution एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें दोनों पार्ट आ जाते हैं पॉलिटी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देखो जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से की है उनको इस पार्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक्ट्स वगैरह पढ़ चुके हैं कि किस एक्ट के बाद क्या आंदोलन आ रहा था और 1858 के बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो आप लोगों की टाइमलाइन बहुत ज्यादा क्लियर है बट अगर जिन बच्चों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है और अभी कुछ ही टाइम रह गया है उनके एग्जाम के लिए तो जस्ट फोकस ऑन दीज इंपॉर्टेंट एक्ट्स फर्स्ट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 चार्टर एक्ट 1853 देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी से 1935 वाले से ही हमारा मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है एंड एक और चीज लिखनी थी 1909 के साथ साथ 1919 भी लिख लीजिएगा वो मैं लिखना शायद स्किप हो गया मेरे से और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये चीजें इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सारे ही कीजिएगा आप ठीक है डू ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 1858 1830 1935 and independence of India act 1947 all these are very important what you need to do in this just see what act is having what kind of impact on Indian polity, whether it is expanding the Viceroy Council or it is adding some Indian member or it is introducing diarchy or dual form of government, which act was known as Montagu Champram Reform, which act was known as Monte Merlo Reform, Monte Merlo Reform, and
which act was came just after the mutiny. So these and how which act like has shifted the power from Viceroy to Governor General of India. These things are like what kind of shifts of power are happening. So these things are like to be specifically looked to while doing the acts, and which act is giving like special seats to minorities and all. So all these things should be read better with Indian freedom struggle. If you read it with Indian freedom struggle, it will become more clear to you. And if at all you are short of time and you need to do it in very fast pace, then you just go as it is and just Google these articles. um like 1909, 1919, 1858, all these acts, you can Google and prepare it. So then also note down who were the member of first cabinet of India, and like who was the law minister, who was education minister, who was our minister of health. Okay, so these are very important leaders which post I took name of. And while forming the constitution, there were so many committees. Some of the members even passed within while being member of a committee. So people were repressed by others. So just have a note of these people also who were part of constitutional committees. Constitutional committees even today exist, like permanent, standing, and these committees that also you need to do. But these are like a micro topic which are of most important. While doing preamble, please do preamble as it is in the sequence, whichever words come. Sometimes the question do come ki which word is given in the preamble, whether it is correct or not, and which word was given before and after. ठीक है, preamble जब आप पढ़ोगे ना तो पूरा सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है, और लिख लिख के पढ़ना ताकि आपको याद रहे, एक एक शब्द याद रहना चाहिए preamble का, क्योंकि preamble आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. Parts and articles, just there are plenty of videos. Just YouTube, on YouTube you just can go and find out the important parts and important articles of Indian constitution. There are also videos which give you mini tricks to remember them. YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको ट्रिक से याद करा देंगी सारी चीजें. जैसे शेड्यूल कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, पार्ट्स का, आर्टिकल्स सेपरेटली, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, इनकी कोई तकिया कलाम बना के या कोई एक वर्ड बना के वो आपको सारा सीक्वेंस याद करा देंगे. तो ऐसी चीजों में आपको पक्का से यूट्यूब की हेल्प लेनी चाहिए कि आप ऑर्डर याद रखें, पार्ट्स, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल कौन कौन से हैं, और आपको सीक्वेंस में अच्छे से याद हो जाए, और एक फन तरीके से आप करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी. Then go and do most important amendments for sure before exam. The most important amendments are like 42nd amendment, which was also known as the mini constitution. First amendment was also important because of the land reform kind of things, but I have just noted down these articles because of the repetition of their questions in UGC NET political science. And for MAIR, I have predicted these questions can come from these areas. So just do them if you haven't yet done anything. 42nd amendment, 44th amendment, 86th amendment is most important. 2002 का UGC नेट में बहुत बार आता है ये राइट टू एजुकेशन वाला. ठीक है, तो 86th amendment पक्का से कीजिएगा, 2002 वाला. Then amendment 91st, 97, and all the amendments after 99 amendment are important. Amendment, which article? 368. And just also think about and search about, are all amendments happening under article 368, or there is some other way out to amend the constitution? This is my homework to you. ठीक है, and also see who defines Indian constitution or Indian polity how. Like quasi federal हो गया to the Indian polity, or is it like whoever is defining how to the constitution, just like some foreign scholars who are giving statements. Whenever you will do your past year papers, you must have come across such questions. Now I'll go to the most important slide. This is apple of ice, really apple of ice, because whatever exam it is, इनमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. These are most important part. इसको नहीं किया तो कुछ नहीं किया. ठीक है.
फंडामेंटल राइट्स एज इट इज, सारी फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ो, कौन सी इंडियंस को अवेलेबल है, कौन सी फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। A to Z फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP तो ऐसे रटी होनी चाहिए। गो टू यूट्यूब, यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने तकिया कलाम बना बना के याद करा रखी है आपको कि कौन सी क्या ऑर्डर में है, और इनको इन डेप्थ में पढ़ना। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट किन किन को कैसे कैसे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, ठीक है। तो थोड़ा करंट से भी जो प्रेसिडेंट के इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे ऑर्डिनेंस पास किया है या फिर किसी का डेथ सेंटेंस है तो उसकी पार्डनिंग पावर न्यूज में आ रही है, तो ये सारी चीजें आप प्रेसिडेंट की तो पढ़ के ही रखिएगा। पंचायती राज, अगेन अ वेरी एवरग्रीन टॉपिक। पंचायती राज की सारी कमीशंस, कौन सी कमीशन किसके नीचे बनी थी और कौन उसको क्या रिकमेंड कर रहा था, कौन से 2 टायर 3 टायर, और ये वाली चीजें भी आप कंपेयर कर लीजिए। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत समिति का मेंबर बनने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, सरपंच बनने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, और पंचायत को कौन फंड दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पंचायती राज चैप्टर बहुत प्यार से आराम से अच्छे से करना प्लीज। स्टेटहुड इन सीक्वेंस, जैसे नागालैंड, असम, ये सारे जो, असम तो पहले से ही था, नागालैंड, मणिपुर और गोवा, एंड अभी एक रिवर्स स्टेटहुड का कंसेप्ट भी आ गया, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके एक ऑर्डर में होनी चाहिए। सिक्किम कब आया, सिक्किम ने डायरेक्ट ज्वाइन किया, सिक्किम कभी यूनियन टेरिटरी रहा ही नहीं, वो सीधा स्टेट बना था। तो एक पूरा नोट लिख के रखिए कौन सा कैसे है ये। बहुत बार क्वेश्चन आता है, MAPISM वाले पेपर में एक बार आ भी चुका है, तो जस्ट डू इट, ठीक है। DPSP मैंने बोल दिया, और लिंक कीजिएगा करंट को, जहां तक लिंक कर सकते हो कीजिएगा। करंट कैसे, जैसे पार्ट 1 हो गया, अभी ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाली बात बताई मैंने आपको, स्टेट वाली चीज से लिंक होती है। फिर जो भी एक्ट्स और बिल एट प्रेजेंट करंट न्यूज में है, कोई भी बिल हो, उस पे थोड़ा ध्यान जाना चाहिए आपका, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल इन डेप्थ इंडियन पॉलिटी में आती है। कोई भी बिल है कैसे पास हो रहा है, मनी बिल है या नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है या उसको मनी बिल बना के उन्होंने पास करा दिया पार्लियामेंट में, या फिर कितनी किस बिल के लिए कितनी मेजोरिटी वगैरह चाहिए। तो करंट वाली जो चीजें एक्ट्स एंड बिल्स वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादातर पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन है ना वो करंट से लिंक हो जाते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट वाले चैप्टर को इसमें एप्पल ऑफ द आई में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने करंट लिख दिया है यहाँ पे। अभी आएगा, आगे चैप्टर आएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स टू बी मेड, इन सब के नोट्स बनाने हैं, लिख के रखने हैं। UGC नेट पॉलिटिकल साइंस पक्का से क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ हेड्स इन ऑर्डर, सबसे पहले से सबसे आखिरी तक का एक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों दिमाग में रखना जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। और इनका स्टार्टिंग के वर्ड जोड़ जोड़ के अपना कोई तकिया कलाम टाइप की चीज भी बना के रखिए, जिससे आपको ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाए। डू मेक लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट हेड्स एंड ट्राई टू मेमोराइज इट इन वट एवर वे यू कैन, like prime minister, president, vice president, chief justice of India, election commission, speaker, and all. And for MA PSIR, important persons in news is much more important, because I have seen a question in some paper, that who is the foreign secretary at present, like he is some I'll just give you the answer of that. uh, Harshvardhan Singla. Yeah, Harshvardhan Singla is the present Foreign Secretary of India. So, for people whosoever are aspirants of this PSIR and IARM, you just do the Foreign Secretaries, and if possible, if you have time, then look at that very first Foreign Secretary like KPS Menon, because he is a very renowned person and linked to JNU. So just do the list of entire list of foreign secretary for a person who are preparing for JNU EE। जो UGC नेट वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को ऐसे देखे, करंट अभी एट प्रेजेंट कौन किसकी नियुक्ति हुई है, RBI गवर्नर की किसकी नियुक्ति हुई है, नीति आयोग की चेयरमैन कौन है, ये सारी चीजें, और नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। अभी 15th फाइनेंस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मैं दिखा रही हूँ उसको। इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस भैया, जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ें,
फंडामेंटल राइट्स पढ़े या किसी भी चीज पे कोई भी बड़ा मुद्दा है, भले ही वो शाह बानो केस है, भले ही वो केशवानंद भारती केस है, या कोई भी केस है, यूनियन वर्सेस स्टेट केस हो गए, कुछ भी हो गए, इंपॉर्टेंट केसेस तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की। There are plenty of videos on YouTube which gives you a brief summary of important cases. But whenever you are reading your articles, your parts, your current amendments, you'll come across important cases like very recent, from like this LGBT cases, Aadhaar card cases, to very old like Keshwanand Bharati case. These cases are very important. If at all, if you are trying to make notes, it will come around like 10 to 12 pages. So be that sure that you have at least 10 to 12 pages of notes for important cases, because somewhere it will give you a base for your uh, articles also, like Polo Gualo case, every case. There are like 10 to 20 names running in my mind, but I'm telling you, there are plenty of videos available online, on even on YouTube, to see the important cases, or you can just Google it out and you'll get a link of some very good renowned institutes which have given you the list. Important commissions from book as well as current. अभी एट प्रेजेंट भी कोई कमीशन है, किसी कोई कमीशन बिठाई है, भले ही ओबीसी के लिए बिठाई हो, भले ही वुमेन के लिए बिठाई हो, भले ही कोई राइट के लिए बिठाई हो, फार्मर इशू के लिए बिठाई हो, करंट वाली सारी कमीशन पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट कमीशन जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं ना, भले ही आप इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, भले पंचायती राज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी सारी कमीशन आ गई, भले यूनियन स्टेट पढ़ रहे हैं, उसमें पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, कितनी सारी कमीशन है। तो ये भी आपको नोट्स में लिख के रखना है। मतलब आपकी कॉपी के पीछे का जो हाफ है ना, उसमें ये सारी चीजें ही लिखनी है आपको। लिस्ट करते जाइएगा, जिस दिन भी एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेशली यूजीसी नेट वाले बच्चे, मेट्रो में, गाड़ी में, या वहां इंस्टीट्यूट के बाहर जाके यही पन्ने पलटने हैं। ठीक है। Important constitutional bodies like CAC, FFC's Finance Commission, CEC, uh, all national commission, Women National Commission for this National Commission for Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, OBC, all the national commission, whichever comes under constitutional bodies. And important non-constitutional bodies also: CIC, SIC, CVC, National Human Right Commission, National Green Tribunal, NITI, and all these are non-constitutional bodies. So there should be a list, because sometimes the question do come, which of this is a constitutional or non-constitutional body. Okay, लिस्ट पूरी बनाना सभी की। ये मैंने इंपॉर्टेंट नेम लिख दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई चीज करंट में दिखे ना, वो भी इसमें जोड़िएगा। ये वाली चीजें तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, बट कोई चीज करंट में आ गया, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भी तो करंट अफेयर आते ही जा रहे हैं ना, तो कोई करंट में भी चीज आ गई, वो इसमें जोड़िएगा। ये वाली जो चीजें हैं, आपकी कॉपी का जो पीछे वाला हिस्सा है, उसके अंदर आप पेजेस खोल खोल छोड़ छोड़ के रखिएगा। ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा, यहाँ कमीशन सी लिखनी है, उसके आगे 4-5 पन्ने छोड़ दीजिएगा। जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर या करंट अफेयर, कोई कमीशन आ गई, वहां जाके लिख लीजिएगा, ताकि रिविजन करने में बहुत आसानी हो। Also find time for these are also important topics like Supreme Court, High Court, whatever their powers are, writs है और पास हैं, और उनका रोस्टर कैसे बनता है, उनके जजेस की कैसी अपॉइंटमेंट होती है, गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, किसकी एब्सेंस में कौन जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। पार्लियामेंट में जितने भी मोशंस बिल्स कैसे पास ऑन होते हैं, स्पीकर साहब की क्या पावर्स है। स्पीकर साहब इज एवरग्रीन टॉपिक इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एवरी एग्जाम फॉर एंट्रेंस इन गुड इंस्टीट्यूट्स। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है, वेरी बेसिक, लाइक कितने साल की होती है, प्रेसिडेंट किस किस को नॉमिनेट कर सकता है, ये सारी चीजें। और प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो कौन कौन वोट कर सकता है, स्टेट में कौन कौन वोट कर सकता है, ये तरह की सारी चीजें आप प्लीज कीजिएगा। गवर्नर ऑल्सो, I have mentioned it specifically in if you find time, but if at all you don't have time, then just have a glance of the power of governor as compared to president, and just note down, जो गवर्नर की जो पावर है सिमिलर टू प्रेसिडेंट है, +99 या +100 करके वो सेम आर्टिकल का नंबर आ जाता है।
गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स एक दूसरे से मिलती जुलती है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो ऑर्डिनेंस पावर जैसे ये 1 2 3 है, तो उससे जस्ट पहले जस्ट बाद में किस हिसाब हिसाब से ये चीजें आ रही हैं, ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन आजकल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये तनाव भी हो सकता है, तनाव नहीं भी हो सकता है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये इसमें बड़ा चेंज आ रहा है आजकल। किसमें? यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में। तो प्लीज आप सेंटर स्टेट रिलेशन में, और कुछ हो चाहे ना हो, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और उसमें कैसे कैसे चेंज हुआ है, जीएसटी आने के बाद क्या क्या आर्टिकल्स में चेंज हो रहा है। और अभी कोई जैसे धीरे धीरे हर सरकार के नीचे कुछ कुछ जो आर्टिकल्स थे वो स्टेट से सेंटर में शिफ्ट हुए हैं। ये सिर्फ ये नई सरकार नहीं है, पहले की सरकारें भी ऐसे की गई हैं कि स्टेट से यूनियन लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट में टॉपिक्स जा रहे हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आप प्लीज कीजिएगा। फेडरलिज्म कीजिएगा प्लीज। पैसा एक्ट कर लीजिएगा, लोकपाल लोकायुक्त कर लीजिएगा, और एंटी डिफेक्शन भी कर लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन वाला एक्ट भी देखिएगा आप कौन सा एक्ट है। और ये राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था। आई थिंक आई हैव ये वाले जो टॉपिक्स है अगर आपने कर लिए तो 10 क्वेश्चन अगर आ गए तो 9 तो पक्का से हो जाएंगे पॉलिटी से। सो बी श्योर। और जिन्होंने अभी तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी और एग्जाम पास में है, तो ये टॉपिक कर लीजिएगा, यूट्यूब की हेल्प ले लीजिए। और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वेबसाइट पे बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इन चीज़ों का मटेरियल अवेलेबल है। तो शॉर्टली अगर आपको करना है तो ये कीजिए। और अगर आपके पास कुछ 6 7 महीने हैं तो आप प्लीज़ लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, और लास्ट के दिन में ये वाली चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।